Hello my dear students, how are you? Welcome back in my class that is Learn with Shobha. Today we are going to start a new topic that is again based on verbs. Earlier we have done topic verb, two types. We have done two types of verbs, that were finite verbs and non-finite verbs. Now we are going to discuss a new concept of verbs. Before that, I just want to ask, what do we need to make a sentence? Yes, of course, subject, then helping verb. Sometimes we don't need, but most of the time we need helping verb. Then we need verb and then object, right? This is the main part of a sentence, and these are the parts that we need to make a sentence. Have an example. I gave him a pencil. Okay, so here I have taken subject, then verb, and then here I have two words. So these both are our objects, but here it means it shows that in a sentence we can have more than one object, right? And today I am going to tell you, even earlier I have told you that our subjects are also of two types: direct object and indirect object. Now we need to know which is direct object and which is indirect object, right? So our direct object, that gives answer of what or who or whom, okay? And indirect objects, that gives us answer of to whom, for whom, like this. ओके, मीन्स जो बाकी जो बच जाते हैं, इनके अलावा जो बाकी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उनके जो आंसर्स देंगे हमें, दैट इज आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अभी देखो, यहाँ देखो कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ कौन सा इनडायरेक्ट है. नाउ आई गेव हिम अ पेंसिल. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें आंसर देता है व्हाट और हु का. तो यहाँ गिव क्या दिया? पेंसिल. तो ये हमारा क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसे दी? टू हुम. किसे दी? सो इट इज आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. I hope the difference is very clear to you. The word that gives us answer of what or who, that is our object, direct object, and indirect object that gives us answers of to whom, for whom. This is a very quick trick to know about objects. Clear? Now, one more thing we are going to start today, and that we are going to start about verbs. That sometimes verbs takes objects, sometimes verb does not take object. So can we categorize these kinds of verbs also, right, according to their uses? So now let's talk about the verbs that takes object, or if it takes object, what we call it. If it does not take object, what do we call it? है ना? So let's talk more about it in detail, right? Now I have written here two types of two sentences here. So let's talk about the parts of these sentences. First is our subject for sure, then its verb, and this is our object, right? Here this is our subject
and this is our verb. This is an adverb only, that is defining verb only, right? So now here I have not taken object, but here I have taken object. Based on these sentences, means these kinds of sentences, we have two types of verbs. First is transitive and second is intransitive. Okay, so what is a transitive verb? Transitive verb that receives an action or that has an object, जिसमें object हो, और intransitive verb that has no object. In means not, intransitive means not, means no object, that has no transmission. जो रिसीव किस पे करे, कोई ट्रांसमिशन का कोई सोर्स नहीं है, इट मीन्स इट इज intransitive, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. दोज वर्ब्स आर दैट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट. दोज वर्ब्स आर नॉन एज intransitive verbs. क्लियर? और जिनको जरूरत है, जिनके सेंटेंस में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, दैट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट इट. माई मदर कट द केक. अब मैं यहाँ अगर ऑब्जेक्ट नहीं लूं तो आपको लगेगा शायद कि सेंटेंस जो इनकम्प्लीट है, उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है. माई मदर कट, मेरी मदर ने काटा. क्या कुछ जानने की का मन करता है ना, कि लगता है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं है अगर हम द केक नहीं लिखेंगे तो, है ना? और यहाँ देखो, द चाइल्ड क्राइड. ठीक है, क्राइड लाउडली, बात खत्म हुई. कहाँ रोया, कैसे रोया, क्यों रोया, कब रोया, कुछ जानने की जरूरत नहीं है ना? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. इट मीन्स द सेंटेंस इज कंप्लीटेड विदाउट ऑब्जेक्ट, है ना? जहां द वर्ब दैट हैज नो ऑब्जेक्ट, this verb is known as intransitive, and the verb that needs object to complete the meaning of the sentence, that is transitive verb. I hope it is clear to you. Now let's talk more about what we have discussed, what we have done today. Transitive, intransitive verbs, and we have discussed about objects, two types of objects, direct object and indirect objects. Let's have an exercise that talks about these. Let's do an exercise where we need to find out whether the verb is transitive or intransitive, and along with it we need to check if it takes, the verb takes object, which kind of object it is, whether it is direct object or indirect object. So ready guys? Let's see how many answers you are giving correctly. Okay, so my first sentence is, the child narrated a tale. Here we have subject, then verb, and then an object. So we have to check first whether the verb is transitive or intransitive. So the child narrated. What he narrated? कुछ क्या narrate किया उसने? कुछ जानने की, कुछ आगे किसे नैरेट किया, कुछ ऐसा आ रहा है मन में? सोचते हो कि सेंटेंस कंप्लीट है या नहीं है इसके बिना? द चाइल्ड नैरेटेड, अगर मैं ये वर्ड अ टेल हटा दूं तो क्या लगता है कि वो कंप्लीट है सेंटेंस? नैरेटेड व्हाट, है ना? तो यहाँ अ टेल हमें जानने की का मन कर रहा है ना, तो यहाँ हमारे को ऑब्जेक्ट की जरूरत है. सो इट इज अ ट्रांजिटिव. यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हमें जरूरत भी है उसे कंप्लीट करने की, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, है ना? सो इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट.
अ टेल। तो ये ऑब्जेक्ट किसका आंसर दे रहे हैं? नैरेटेड व्हाट। व्हाट का आंसर जो दे वो कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा? दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट, द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द हाउस। अब डिस्ट्रॉयड जो है कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? देखो उसको डिस्ट्रॉय क्या किया, किसको डिस्ट्रॉय किया, कुछ आंसर आपको जानने की जरूरत पड़ रही है ना। तो डिस्ट्रॉयड हमारा क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव है ना, कि किसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर यहां अब देखो ये किसको आंसर कर रहा है? क्या आंसर कर रहा है? किसको डिस्ट्रॉय कर दिया, किसको? टू whom। टू whom का आंसर जो दे दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द फार्मर सोल्ड मी सम पोटैटोज। तो सोल्ड कौन सी वर्ब है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? हाँ, जरूरत पड़ रही है किससे क्या सेल कर दिया है ना। तो सोल्ड इज आर ट्रांजिटिव वर्ब अगेन, एंड मी एंड सम पोटैटोज। यहां हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है? व्हाट का आंसर हमें क्या दे रहे? सोल्ड क्या किया? ये सो सिंपल, सम पोटैटोज। सो इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आर, किसे सोल्ड किया? इट इज आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज ही wept। वो रोया, दैट्स इट। क्यों रोया, कहाँ रोया, जाने की जरूरत ही नहीं हो रही है। सो इट इज आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट है द कार हॉल्टेड सडनली। एकदम से अचानक से आवाज करनी शुरू कर दी ना। तो ठीक है, कर दी तो कर दी। तो फिर यहाँ ये क्या, कौन सी वर्ब हो गई हमारी? पीछे कुछ नहीं जानने की जरूरत है, कहाँ की, कब की, क्या, क्यों की, कुछ नहीं। ठीक है, हॉल्टेड सडनली करनी शुरू कर दिया। पीछे सेंटेंसेस के ऑब्जेक्ट के बिना भी कंप्लीट हो रहा है। सो इट इज अ इनडायरेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, द टीचर स्पोक सॉफ्टली। टीचर ने कैसे बोला? सॉफ्टली। अब पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज अ intransitive, right? Next है the lawyer spoke the truth। क्या बोला? अब यहाँ पे हमें जरूरत हुई और हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट भी है। और देखो यहाँ अब बात आ रही है कि ये तो हमारी इस तरह से यूज हुआ है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, कि इसके पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन यही सेम वर्ब हमने यहाँ यूज की जो है इंट्रांजिटिव, क्योंकि पीछे हमें जरूरत नहीं पड़ी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो फिर इट मीन्स some verbs that take object or sometimes not, कि कुछ ऐसी verbs हैं। और मैं कहूंगी most of the verbs ऐसी हैं जो transitive भी हैं, intransitive भी हैं। मीन्स उनके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है भी कंप्लीट करने के लिए मीनिंग को, और नहीं भी। तो most of the verbs जो हैं वो दोनों का काम करती है, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी। ठीक है, तो स्पोक उनमें से एक है। नेक्स्ट है शी इज अ डॉक्टर। अब शी इज अ डॉक्टर, यहां वर्ब कौन सी है? नहीं है, लेकिन डॉक्टर कौन है? शी। तो ये शी क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में हमें और बता रहा है ना। तो यहाँ अ डॉक्टर वैसे तो ये नाउन है, लेकिन हमें किसके बारे में बता रहा है? अब शी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। सो इट इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वी कॉल इट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? ठीक है, और सेंटेंसेस देखते हैं, इसके बारे में और बात करें थोड़े से। लेट्स टॉक। वी हैव डिस्कस्ड ट्रांजिटिव verbs of two types, transitive and intransitive. Okay, so now let's talk more about intransitive, who does not require transitive verb that requires object, and intransitive that does not require object. ठीक है, और इंट्रांजिटिव से के बाद अब एक और बात हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब नहीं, लेकिन एक सिंपल सेंटेंस की तरह बात करें जिसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से लेते हैं ना, वर्ब और कुछ और नहीं, प्रेडिकेट लेते हैं। कैसे होता है वो सेंटेंस? द बॉय क्राइज। मैंने ये सेंटेंस लिया, ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया और ये
प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ पे मुझे और जानने की जरूरत नहीं है कि क्यों रोया, कैसे रोया, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब विथ कंप्लीट प्रेडिकेट। राइट, or we can say it verb of complete predication। हम इसे क्या बोल सकते हैं, verb of complete predication के आगे हमें predication की जरूरत नहीं है। अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, the boy appears। आपको लिखते द बॉय अपीयर्स, कुछ आगे जाने की जरूरत है ना। तो मैं यहां पे लिखती हूं सैड। सेंटेंस कंप्लीट, अपने आप में मीनिंग कंप्लीट हो गया। लेकिन कैसे? तो जो इस तरह की सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें वर्ब को थोड़ा डिफाइन करना पड़ता है, उसके बारे में हमें कुछ और बताना पड़े, तो ऐसी वर्ब्स कहलाती हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट की। उनको कंप्लीट करने की किसी और की जरूरत है, तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब एक और सेंटेंस देखो, शी इज अ डॉक्टर। ठीक है, अब ये हमारी जो वर्ब है, इसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, वर्ब जो है किसको बताती है कि एक डॉक्टर है ना। कौन है वो डॉक्टर? शी, है ना। शी जो है वो डॉक्टर है। अब ये डॉक्टर वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है? शी को। लेकिन आपको लगता है कि ये डॉक्टर कोई उसकी शी की क्वालिटी बता रहा है, क्या एडजेक्टिव है? नहीं, है ना। तो ये जो शी है, शी इज अ डॉक्टर, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन शी के बारे में बता रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा, कॉम्प्लीमेंट। किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसके बारे में और बता रहा है? ये बता रहा है हमारे सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो वर्ब को और बताता है, वर्ब की हेल्प से सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसे वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब भी कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब के बारे में हमने और एक तो हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बेस पे, जिसमें ऑब्जेक्ट के बेस पे हमने वर्ब को डिफाइन किया, और दूसरा हमने दूसरे टाइप का सेंटेंस लिया था सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का, जिसमें प्रेडिकेट के बेस पे हमने वर्ब्स को डिफाइन किया था। और उसमें हमारे पास, अगर हम ऑब्जेक्ट के बेस पे लेते हैं वर्ब्स को, तो हमारे पास 2 टाइप्स की वर्ब्स रहती हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, राइट। और अगर प्रेडिकेट के बेस पे लेते हैं तो हम लोग लेते हैं वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, राइट, और वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, और जिसमें मेन वर्ब नहीं रह के अगर हम हेल्पिंग वर्ब से उसे डिफाइन करते हैं, जो सब्जेक्ट को, हमारे सब्जेक्ट को डिफाइन कर रही हो, वो क्या होती है, हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। क्लियर हुआ? अगर हम ऑब्जेक्ट के कंसर्न में हमारी वर्ब्स को देखते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। और अगर हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के कंसर्न में वर्ब्स को देख रहे हैं, तो हमारे पास फिर भी 2 टाइप्स हैं, वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन एंड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, लाइक दिस। जहां आगे हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं हो, तो वो है हमारी वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। और जहां हमें उसके बारे में और जानने की जरूरत हो, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो, तो वहां होगा वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। गॉट इट? थैंक यू, बाय बाय।